All right, welcome back to Cricket for Americans. Nick here. Gabe, the Night Watchman. He wishes. And Gabe and I are here for another Cricket Tuesday. Ooh, and I'm excited about this one. How are you excited about this one? We're going to be talking about a player that you've never heard of before. This is a Breakfast with Champions. Just came out somewhat recently. I don't even know if you can pronounce his name, but Gabe, go ahead and pretend like you know who this person is. Who are we talking about today? Stop it. You know there's not been a bigger champion for Sky Baby than me. My man Suryakumar Yadav. It's crazy, right? Because I thought he was a young cat, right, Nick? And when we first started watching cricket, I'm like, dude, young compared to us. Exactly. But this dude has such quick hands, and I mean, I'd watch him play, and people would be like, blasphemous. And I was like, bro, his hands are as quick as Kohli. You know what I mean? Like, this kid is good. And somebody was like, dude, he's like 50. What do you mean he's like 50? He looks like a young boy. He's like, nah, he's been around for a while. He just never got a shot. So I'm interested to find out and hear from his own words why it took so long for him to break through. And I just want to hear his story. But normally I'm talking or whatever, but you told me Sky, and I'm like, oh, you know what I mean? Like fanboying, bro, fanboying. I love me some Sky. Let's let Oak Tree do the talking. Let's let Gaurav do the talking. Let's see what it's all about. If you like anything about this reaction, do us a favor, hit that thumbs up, hit the subscribe button, and let us know below what you want us to check out next. But with all that being said, let's go ahead and jump right into, as Gabe says, and several women want to throw up, Sky Baby. Let's go ahead and check this out in 3, 2, 1. चुप हो जाओ. Pipe down. ये फोन होने की तो जरूरत नहीं है ना भाई ये शादी वाला फिल्म पनीर टिक्के लगवाओ. क्या है अगर कोई चीट मील हो क्या लंबा कुछ भी मेन्यू हो सके तो बोलना अलाउड है. हाँ प्रॉपर मतलब वड़ा पाव से तो स्टार्ट करता हूँ मैं. ठीक है एपेटाइजर हो गया 2 से 3 प्रॉपर. उसके बाद लंच में पाव भाजी तो बनता ही है. मक्खन घुमा प्रॉपर एकदम ऊपर से डाल के प्रॉपर. और रात में चाइनीज, लेकिन स्ट्रीट वाला चाइनीज चाहिए जो आग के सामने बन रहा है, आग के सामने चावल उड़ रहा है वो वाला ट्रिपल शेजवान. वो तो फिक्स है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा आइटम आता है ना. ऑमलेट, चिकन का पीस, एक बोल, फिर चावल के ऊपर ऑमलेट, पूरा बुफे घुस जाता है उसके अंदर. ट्रिपल शेजवान राइस ऐसा. ये कहीं नहीं है, सिर्फ बॉम्बे और कहीं पे नहीं है. और I'm pretty sure Szechuan is just like the कहते हैं sky is regular Szechuan, man, which is really spicy. This guy not your cup of tea. has no limit. International scene पर बेशक ये देर से आए पर क्या दुरुस्त आए. Look at this guy आज rocking मेरे in the शो car. पर होगा इनकी कहानी का सूर्य उदय on Skoda presents Breakfast with Champions. Ooh, look at this sponsors. I love it. Got the fresh hairdo. Nice shirt going on there. To prove to you, I'm such a big fan. मेरी शर्ट देखी, कलर क्या है मेरी शर्ट? Blue. Sky blue, not any blue. Sky blue. घर से तैयार करके आया था ये जोक में. By the way, एक ही तैयार किया सिर्फ. उससे ज्यादा मेहनत नहीं होती मेरे से, ठीक है? ये नाम ही स्काई रखोगे तो फिर तो स्काई पे जाना ही पड़ेगा ना फिर. ये तो बाद में पता चला, पहले तो इतना ध्यान नहीं था इसमें. वो तो 14 में केकेआर में गया था, गौती भाई ने पीछे से 2-3 बार आवाज दी कि स्काई, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. तो बोलते हैं भाई तुझे ही बुला रहा हूँ. तो बोला कि अरे तेरा इनिशियल्स तो देख ले. तब मुझे ऐसा पहचान में आया कि he didn't realize that before. That way is good because That's Gotham hilarious. made you realize a lot of things. yeah. सूर्य के टैलेंट का जूसर मिक्सर ग्राइंडर Can say गौतम है. इंटायर इंडियन क्रिकेट अगर आप देख लें, जो ये सीनियर टीम है, जो कैप्टन्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, वाज ही द फर्स्ट प्रॉपर बिलीवर इन योर टैलेंट? बोल सकते हैं क्योंकि जब मैं एमआईएम में से वहाँ केकेआर में गया 14 में, तो उनको ऐसा लगा कि थोड़ा सा इसमें ऐसा कुछ है जो इफ आई थोड़ा कुछ अगर मैं बताऊंगा इसको तो ही कैन गो ऑन राइट ट्रैक. कभी डांट पड़ी जीजी से? पड़ी तो बहुत बार. गौतम के डांट का और कॉम्प्लीमेंट का ऑडियो लेवल सेम रहता है. सेम रहता है. क्या कर रहे हो? या अरे यार क्या किया तू? उसका सेम. ये क्या कर रहे हो? ये क्या किया तूने? बहुत अच्छा किया तूने. सेम इससे अच्छा नहीं हो सकता.
मैसेज पहुंचाना था उनका काम बस। या टोन कोई भी हो, टोन आप समझ लो जो समझना है। करेक्ट। तो फिर एक देन यू केम फ्रॉम देयर टू योर सेकंड मेंटोर व्हिच इज रोहित। तो छोटे उसको रोहित भाई बुलाते होंगे। हाँ, रोहित भाई में ये बहुत है ना अभी रिस्पेक्ट का भाई ऊपर। वो खुद ही बोलता लेकिन अरे क्या है रे भाई भाई बुलाते हो। रोहित बुलाओ ना सही से। I can see him saying that. वो सिंपल है। और मेरे को याद भी है जब मैंने अपना डोमेस्टिक डेब्यू किया था रणजी ट्रॉफी, तो ही वाज ओनली बैटिंग विद मी सामने इन 2010-11। वो टाइम से आज तक उनका एटीट्यूड, खेलने का, प्लेयर को पुश करने का वैसे ही है। मैं अभी भी आंख बंद करता हूँ और मैंने उनके बारे में ऐसा सोचा ना, तो मैं वो 2010-11 के मैच में चले जाता हूँ वापस व्हेन आई मेड माय डेब्यू। अरे यहाँ पे हु आर योर फ्रेंड्स इन द टीम? एमआई की टीम में यार दोस्त कौन है? अभी तो सबसे खास ईशान है एकदम। बहुत फनी है ना वो, बहुत गजब है वो। मतलब यू हैव टू हैव हिम अराउंड। कुछ भी सिचुएशन हो, मैच हारे हो जीते हो, हारे हो तो यू हैव टू हैव हिम। तो वाइब भी अलग है एकदम। जैसे सिग्नल बाउंस होता है वैसे उसका टॉपिक बाउंस होता है, और कहीं से भी किसी भी चीज में से कॉन्वर्सेशन बना सकते हो। अचानक से ले जाएगा, भैया आपको याद है न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ था, आप आए थे क्या हम लोग के साथ वेस्ट इंडीज की सीरीज में, ऐसा मतलब वो बाउंस करते रहता है बातों को। टू मच फन। ट्रेनिंग टाइम मैंने ट्रेनर को भी बोल के रखे है, मेरा ट्रेनिंग उसके साथ ही होना चाहिए। कोई भी स्पॉन्सर कमिटमेंट है उसमें वो चाहिए, साथ में ही चाहिए। कुछ भी हो, बैटिंग को अगर जा रहे हैं हम लोग वहां अंदर एक दूसरे से क्रिकेट की बात ही नहीं करते। क्या बात होती है? हम लोग स्कोर बोर्ड दिखते ही नहीं है अनटिल और अनलेस चेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। कुछ अलग ही बात है ग्राउंड की। आज भैया रात में जाके ये खाएंगे, मैच जिता दिया तो चॉकलेट और आइसक्रीम तो चाहिए। He would with his ice cream. ये सारे विकेट कीपर के कैरेक्टर कैसे होते हैं? अब ऋषभ कम है, वो तो भी गजब है। वो तो ये और दो अगर साथ में मिल गए, इनके साथ तो मैं लास्ट 7 महीने से टाइम स्पेंड कर ही रहा हूँ। दोनों अगर साथ में मिल गए, हाइट है मतलब वो लोग दोनों कुछ भी बातें कर सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं। वो लोग एक बन में आइसक्रीम डुबा के भी आइसक्रीम भी खा सकते हैं उसमें डाल के। चॉकलेट आइसक्रीम डाल दी ब्रेड के ऊपर, उसके ऊपर नैंडोज का सॉस डाल दिया, हाइट बची थी, एक चिकन का पीस डाल दिया, ये कॉम्बिनेशन हो जाता है उनके लिए। उनकी आंखों में ये बर्गर था कि नहीं भैया खाओ कल रन होंगे आप। इतना नीचे जा सकते हैं हम लोग खाने के लिए। बस दोनों अनरियल है, मतलब क्लीन हार्ट, एकदम प्योर सोल बोलते हैं ना, आपको मजा आएगा उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। ऋषभ की जो बातें मैं कहता हूँ कि मैं कमेंटेटर्स को कहता हूँ कि जब ऋषभ आता है, मैंने कहा आप लोग बस माइक रख दो, बस क्लास है उसका। मतलब कीपिंग के टाइम पे ही इज टू गुड। और वो फील्डिंग में भी ऐसे मूव करता है, अगर मैं कहीं डीप में खड़ा हूँ, हटाएगा सिर्फ 20 सेंटीमीटर हटाता है खाली, बट उसमें भी उसको हाथ ऐसे करना, कभी ऐसे ऐसे करते रहेगा। बोले जाऊं कहाँ? बोले नहीं भैया बस बोर हो रहा था, आप खड़े हो जाओ। तो उसका दिस इज लाइक अ ट्रैफिक पुलिस में जो खड़ा है बोले हाँ, मतलब ऐसे करते रहेगा। अरे इसका क्या मतलब है? आगे भी बुला रहा है, पीछे भी भेज रहा है, साइड भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है। फिर ड्रिंक्स होता है, उसको पूछता हूँ भाई क्या हो गया, कहाँ दिक्कत है, खड़े हो जाओ ना। गजब। What's wrong with you? Just stand there. रिसेंटली इंग्लैंड में थे तो आई वाज फील्डिंग फॉर कुजो भाई, तो मैं सिले पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट टाइम आया हूँ यार फील्डिंग करने के लिए, वाइट्स पहन के पूरा बैठा हूँ मैं सामने, वो कीपिंग कर रहा है। टाइट सिचुएशन है मैच का, एकदम टाइट सिचुएशन। उसमें अचानक से कहीं से भी तो बस चाय समोसा क्या भैया, कुछ लगेगा आपको? चाय समोसे भैया कुछ लाऊं आपके लिए, कुछ लगेगा? उठ जाओ, हो गया ओवर। गजब, टू मच। बापू बोलेगी रिकी पॉन्टिंग बहुत तेज अंग्रेजी बोलता है, मेरे को समझ में नहीं आती। बापू सुनता ही नहीं है, वो सिर्फ उतना ही ध्यान देता है जितना ऋषभ ग्राउंड पे उसको बोलता है बस। तो उसने कहा कि मेरे को वो रिकी पॉन्टिंग की अंग्रेजी समझ नहीं आती। मैंने कहा अगली बार रिकी पॉन्टिंग कुछ बोल रहा होगा ना, उसको बोलना यस कोच, आई आल्सो बिलीव इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। खिल जाएगा वो। अगर ये बापू ने बोल दिया ना उसको, वो पूरा आईपीएल वही सोचता रहेगा कि वो सब ठीक है, अक्सर ने लाया कहाँ से। 100% रिकी छुट्टी लेगा 5 दिन की मॉलडीव्स में। हाँ। मेरे को रिकवरी के लिए टाइम चाहिए इससे। बापू कर भी सकता है। बाकी और क्या क्या निकनेम है टीम में? ऐसे तो कुछ ऐसा जो ऐसा वो दिन मुंह पे आया बुला लेता है। अभी जैसे ईशान है,
कभी दिख गया प्यार से तो उसको कभी छोटू बुला दिया, वैसा हाइट की वजह से नहीं बट ऐसे ही छोटू बुला लिया। पोलार्ड को भी लॉर्ड बोलते ही है। पोलार्ड कुछ खींचातानी भी कर रहा था ना फील्ड पे जब इंडिया वेस्ट इंडीज का टूर हो रहा था अभी वनडे के टाइम में। हाँ मतलब जब मैं बैटिंग को गया तो वो बोल रहा था कि ये तो इतना इजी शॉट्स है आपका, मार क्यों नहीं रहे हो, जल्दी मार के खत्म करो। मैंने बोला सर कोच भी चेंज हो गया है अभी थोड़ा मैचेस जिताने का अपॉर्चुनिटी भी है, क्यों रहने दो ना, आता हूँ आईपीएल में देख लेंगे। मुंबई में you must have played with Sachin, right? मुंबई में you would have, when you were playing domestic, you would have played with him. But अभी भी उनसे मिलके थोड़ा intimidating लगता है क्या? थोड़ा सा कभी? वैसे ही सेम लगता है। मैं के ड्रेसिंग रूम में जैसे जब भी गया था फर्स्ट टाइम, बैठने को जगह नहीं थी, इतने सारे प्लेयर्स और मैं किट बैग लेके खड़ा था। मतलब वो एक जगह में बैठते थे जहाँ पे उनका रहता था, गणेश जी की मूर्ति रहती है वहाँ पे, वो बैठते थे हम। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि नहीं जगह नहीं है बैठने की। तो बोला कि कहीं भी कुर्सी डाल के बना लेना जगह। मैं बोला नहीं कहीं पे भी नहीं है जगह। बोला अच्छा ठीक है इधर आ जा। तो साइड में उन्होंने बिठाया। तो जब मैं उधर बैठा साइड में, फिर अभी तक मैं उधर ही बैठता हूँ। डोमेस्टिक गेम हो, आईपीएल का गेम हो, कोई भी मैच हो, वो जगह अपना फिक्स है। यहाँ से स्टार्ट करा है, भगवान ने बिठाया है तो बैठना उधर ही है। तो आई रिमेम्बर हमारा एक जो हम MITV प्रोड्यूस करते हैं उसकी एक वीडियो में उसने लाइट चली गई, क्या हो गया, कुछ हुआ? सूर्या बैठे हमारे साथ, लाइट की क्या जरूरत है? love that. धुआं निकल रहा है यार ब्रिज उसमें से। He winks. रोहित ने हमारे एक MITV वीडियो में बोला था, और I think it was his birthday. No, it was my birthday. Oh, your birthday. In 2020. 30th birthday, केक कटिंग। केक कटिंग के टाइम पे। और क्या बोला था उसने? बोला था क्या, many many happy returns of the day. Keep working hard. You're not away from that India cap. Yeah. he said इस साल खेलेगा। इस साल हाँ। He was always behind me. थे पुश करते रहे, रन्स बनाते, अभी बनाया, अगले गेम में वापस बनाना है, अगले गेम में बनाया, और एक अपॉर्चुनिटी आएगा, बनाते रहना है। कीप नॉकिंग दैट डोर, अगर नहीं रहा तो तोड़ दे दरवाजा। तो ही वाज कंप्लीटली बिहाइंड। एक बात तो है कि मतलब नॉट जस्ट यू, मी, ऑल योर फैंस, एवरीबॉडी वाज सेइंग बॉस दे दो इंडिया कैप इसको, दे दो इंडिया कैप, कर क्या रहे हो? Gabe was yelling at it across the world. दुरुस्ता है कि इससे भी आगे चले गए आप, दे दो। Because I can imagine you Let's say he has some why. That's one of the big questions. सारे रन आ रहे हैं, सब जगह की शॉटें लग रही हैं, सारे लोग कह रहे होना चाहिए, फिर भी you haven't got it yet. और आपके साथ एक लेजेंड खड़ा है, कैप्टन खड़ा है। करेक्ट। I'm sure that's like a थोड़ा वो wind beneath your wings वाला फीलिंग आता है ना जब ऐसे बोलता है कप्तान। नहीं बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जैसा आईपीएल स्टार्ट हुआ और जैसा आईपीएल जा रहा था, और देन अ टूर केम, 2-3 स्क्वाड अनाउंस हो गया था एंड आई वाज नॉट देयर। तो मतलब ऐसा बाकी लोग से ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग बातें करते रहते हैं साइड में कि यू विल बी देयर, यू विल बी देयर, और नहीं आया तो देन यू आर थिंकिंग कि अरे कैसे हो गया, अभी तो लास्ट 2 साल से अच्छा चल रहा था। ऐसा लगता है कि अब करे क्या। रोहित भाई तो उन्होंने भी ऐसा पूछ लिया, डिसअपॉइंटेड है? बोला अरे ब्रो क्या बोलूं अभी, देख के आपको समझ में भी आ रहा है, आप भी फील कर रहे होगे। फिर मैच आया, तो मैच के टाइम पे उन्होंने, जहीर खान ने और महिला जयवर्धने ने समझाया अच्छे से। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यहाँ पे शो एवरीवन व्हाट यू हैव गॉट। मैंने बोला कि ठीक है, बट स्टिल मेरे पीछे दिमाग में चल रहा था कि ह्यूमन टेंडेंसी, आप सोचते रहते हो कि कैसे करना है, बट अच्छा हुआ उसमें पहले फील्डिंग आ गई, तो वो धीरे धीरे जो एकदम रश ऑफ ब्लड है वो एकदम कम हो गया। एड्रेनलिन एकदम आराम से, ज़्यादा एकदम सोच नहीं रहा था, अपने आप चल रहा था, सब मोशन में जैसा चाहिए। टारगेट भी आ गया, सिचुएशन भी आ गई। मैंने बोला बॉस यही टाइम है, अगर मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। जो मैंने लास्ट 4-5 दिन मेरे वेस्ट किए ट्रेनिंग के, जिम सेशंस के, वाइफ के साथ लड़ के, घर पे बात नहीं करके, वो ये मैच में मैं पूरा खत्म कर सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ। बस ये मैच मेरे को जिताना है कैसे भी करके, कुछ भी हो जाए। मैसेज भी भेजा रोहित भाई ने कि बस तू खेल लास्ट तक, क्योंकि विकेट्स भी जा रहे थे। बोला खाली खेल लास्ट तक, बाकी हो जाएगा काम। मैं बोला ठीक है, फॉलो किया, जैसे था वैसे हुआ, और फिर मैच भी जीत गए एंड एवरीथिंग वाज लाइक। नई शेव भी करी थी उसी दिन, पूरा क्लीन शेव भी किया था एकदम प्रॉपर। तो घूम के ड्रेसिंग रूम के साइड, और बैठे थे ऊपर फैमिली वाले, टीम वाले सब, उनको देख के बस बोला कि बॉस
मैं हूँ, टेंशन मत ले। नाइस। तो वो एकदम इंस्टिंक्टिवली था, कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि जिताऊंगा, ये करूंगा वो। घूमा ड्रेसिंग रूम के साइड देख के, ज्यादा शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। जो आया उस टाइम पे मन में, वो जो लास्ट सांस लिया वो मैच के बाद, दैट वाज प्रॉपर सैटिस्फैक्शन। जो स्टेयरिंग मैच हुआ था विराट के साथ वो मैच में, दो शेर एक दूसरे को देख रहे हैं। पर चीकू के साथ क्या हुआ था उस मैच? उनका तो ऑब्वियसली स्टाइल है, जो एनर्जी उनका अलग ही लेवल रहता है ग्राउंड पे, और वो गेम इतना इम्पोर्टेंट था दोनों टीम के लिए, तो अलग ही लेवल पे था उनका स्लेजिंग वो मैच में। तो और मैं खुद पे एकदम फोकस था कि बॉस कुछ भी हो जाए अपना फोकस हटाना नहीं है, मैच तो जीताना ही है कैसे भी करके। बोलना कुछ नहीं। तो वो बॉल गई, उन्होंने उधर से एक्शन किया, और इट वाज वेरी इंस्टिंक्टिव। मतलब मैं च्युइंगम चबा रहा था, मुझे पता है वो सिचुएशन में अंदर मेरा पूरा फटा हुआ है पूरा अंदर हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई, आदमी सामने से चल के आ रहा है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे, च्युइंगम चबा रहे, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस अंदर से जोर जोर से आवाज आ रही थी, भाई पैर पड़ रहा हूँ तेरे, कुछ बोलना नहीं है। अपने आप से बात है। हाँ, अपने आप से कुछ बोलना नहीं है, 10 सेकंड का ही बात है, नया ओवर चालू हो जाएगा, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा वो स्टेप। बस वो सिचुएशन, वो उधर से पास हुए, वो तो अच्छा वो टाइम पे बैट गिर गया मेरा, वो ब्रेक करना था उस सिचुएशन, तो वहां से मैं निकला, फिर मैं देखा भी नहीं उनको, फिर पूरा गेम जब खत्म हुआ तब तक चांस ही नहीं, मैं चुपचाप नीचे देख के बैटिंग कर रहा था, ये टॉपिक कभी बाहर भी नहीं निकाला फिर हम लोग ने। So then after such a long wait, जब इंडिया की कैप मिली है, जब नाम अनाउंस हुआ, तो what was the, can you describe what the feeling was at that time? एक्चुअली मैं दरवाजा बंद करके बैठ गया रूम में अकेले, पहले 5-10 मिनट के लिए खुद को पिंच किया, एक टपली भी दिया खुद को जोर से। मैंने बोला कि ये रियल है क्या सही में। फिर पहले घर पे मतलब सबको एक साथ वीडियो कॉल किया, मम्मी डैडी बहन और वाइफ को बात करने के लिए, तो वो लोग तो ऑब्वियसली रो ही रहे थे, तो मैं बोला अरे ठीक है इमोशनल मोमेंट है अच्छा, लेकिन थोड़ा सा सिंक करो। हाँ, बट वो जो 5-10 मिनट का मोमेंट था, वो आंख बंद करने के बाद वो सब याद आने लगा, लास्ट 4 साल 5 साल में ऐसा क्या किया है, मतलब जहाँ जहाँ जो जगह डिसिप्लिन दिखाना था वो सब जगह सब याद आने लगे। और जब कैप मिली, कैप किसने दी? कैप दिया एक्चुअली रवि सर ने, तो उन्होंने पहले बुलाया मुझे दोपहर में, आफ्टरनून में बताया था, आफ्टरनून में बुला के पूल साइड में बैठे थे वो, तो उनका जब फोन आया तब मेरे को ऐसा फील होने लगा कि आज का दिन कुछ तो है। Come down, come to the pool, come to the pool, ऐसे करके come to the pool, ओके सर, हमें नीचे जाने के बाद सीधा ऐसा देखा, तू खेलेगा आज, मैं बोला ठीक है सर, डरा क्यों रहे हो? तो फिर उन्होंने बताया कि डेब्यू करने के टाइम पे मतलब कैसा फीलिंग आता है, ऑब्वियसली कैसा खेलना है वगैरह, ऑलवेज टेक अ पॉजिटिव साइड, वही जो उनका छोटा सा स्पीच दिया उन्होंने। और ग्राउंड पे जाने के बाद भी जब कैप वगैरह देने के बाद भी जब विश करते हैं तभी भी अच्छा था, एकदम मोटिवेटिंग, मुझे तो अच्छा लगा, आई वाज पम्प्ड अप। तो आपने जो 4-5 साल निकाले, obviously tougher, you're seeing your batchmates, maybe 1 or 2 your junior कह रहे हैं यार ये भी खेल रहा है मैं नहीं खेल रहा, तो उस वक्त होता है कि मेरा अब गोल क्या है, मेरा गोल है कि इंडिया डेब्यू मिले। अब 2021 में आप डेब्यू करते हो कंट्री को, तो आपको ऐसा लगता है बहुत मुझे अच्छा करना है, लोग देख रहे हैं, बट 30 में डेब्यू करने के टाइम पे इतना मुझे ऐसा ये नहीं लगा कि मुझे ये करके दिखाना है या वो करके दिखाना है। ऑलरेडी मतलब ऑब्वियसली इंडिया नहीं खेला था मैं, बट इतना कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स पहले खेल लिए थे अगेंस्ट, और इतना किया, इतने लोगों के साथ खेल लिया था, ऐसे ऐसे सिचुएशन में बैटिंग कर लिया था कि वो टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि अरे यार यहाँ कुछ और करूंगा तो और कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ। मतलब नॉट टू डिसरिस्पेक्ट द इंडिया कैप, पर यू जस्ट गो आउट देयर एंड यू से ठीक है यार एक और मैच है। करेक्ट, नहीं बटरफ्लाइज थी, पूरा एकदम प्रेशर था, हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई थी, बट ऐसा बैक ऑफ द माइंड ये नहीं था कि यार कुछ अलग ही करना है, कुछ ये नहीं सोचना ये खेल रहा है वो खेल रहा है, जस्ट प्ले द बॉल। क्या कर रहे हो, गजब, कौन खाएगा इसको? जैसे लेके आए उसी मोमेंटम बैक स्विंग में ले जाओ उसको वापस ऐसे। हम इसको वेल लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, थैंक यू। मैं सोचने लगा हाउ माय लाइफ चेंज्ड इन 2016-17। दैट ईयर आई गॉट मैरिड, और उस आई वाज डेटिंग माय वाइफ फॉर 6 years बिफोर दैट, 2010, 11, 12 से पहले शी न्यू कॉलेज, तो शी न्यू कि ठीक है ये क्रिकेट खेलता है, इज प्लेइंग डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, आईपीएल भी खेलता है। तो शादी होने के बाद वंस वी वर सिटिंग एंड उसने रियलाइज किया कि ये सब तो ठीक है,
बट आगे क्यों नहीं जा रहा है तुम्हारा गाड़ी? Yeah. सब खेल रहे हो तुम, अच्छा कर रहे हो, पीपल आर प्लेइंग फॉर इंडिया। बैचमेट्स थे, मुझे याद है अंडर 23 एशिया कप में खेला था, अक्षर पटेल, बुमराह, फिर केएल राहुल, सब लोग साथ में खेले थे मेरे। तो वो लोग सब लोग 15-16 में खेल के दे केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। तो फिर वी स्टार्टेड डिस्कसिंग क्या किया लास्ट 3-4 साल पहले, व्हाट वी कैन डू बेटर आगे जाने के लिए। तो देन वी स्टार्टेड टॉकिंग टू अ न्यूट्रिशनिस्ट, प्रॉपर बैटिंग कोच, हर चीज में, मतलब हर डिपार्टमेंट में उसने बोला कि लगाओ ना कुछ ना कुछ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन। His wife was like, let's do this together, let's figure out कुछ our चीजों goal पे and कंट्रोल करो, not just stop wait for going it to out happen. with your friends लेट नाइट, बाद में टाइम लिमिट रखो, वीकेंड्स पे प्लान रखो। तो जब क्रिकेट का टाइम है उसमें मस्ती नहीं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो जब डेब्यू कैप मिली, फर्स्ट गेम अच्छा गया, रूम में आया, अपना मैचेस देख रहा हूँ, लोग बातें कर रहे हो, वो सब सुन रहा हूँ, आप लोग सब बातें कर रहे हो, वो सब मैं वीडियो में देख रहा हूँ। सुबह के 4 बज रहे। तो उसने बोला कि so cool. ये एक्चुअली तुम्हारा जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है, रियल क्रिकेट जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है तुम्हारा, जिसके लिए तुमने लास्ट 10 साल से मेहनत किया है। दिस इज नॉट द एंड पॉइंट, ठीक है, इसका मजा ले लो तुम आज रात, कल से ज्यादा लोग तुमको देखेंगे, सो यू हैव टू बी केयरफुल। रोहित ने लास्ट ईयर नहीं, अभी रिसेंटली जब हम लोग साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जब मैं गया, उसने बोला कि तेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है ना देविशा, तब मेरे को और भी ऐसा ये हुआ पुश कि बॉस अब तू, मैं नहीं तो लोग भी बोल रहे हैं। But how did you guys meet? You guys met in college. Correct. So was it Jesse Miller आंखों? वो एक्चुअली थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टोरी है, बट ठीक है। कॉलेज में कट्टे पे बैठा हुआ था किसी और लड़की के साथ, बैठ के बातें कर रहे थे हम लोग, एंड आई वाज फेसिंग ऑन द अदर साइड, और वो पीछे से चल के आ रही थी, और मेरे फ्रेंड ने आवाज दी पीछे से, ऑब्वियसली जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। तो मैं पीछे मुड़ के देखा, तो उसने मेरे को हाई किया, और उसने साइड में भी किसी को हाई किया, लेफ्ट साइड में देख के। तब मैंने देखा, रे मेरे को हाई कर रहे, किसको हाई कर रहा, मेरे से मिला आके। तो मैंने बोला कि तेरी फ्रेंड है क्या? वो सब तो ठीक है, वो सब ठीक है, तेरी फ्रेंड है क्या? बात तो करा ही सकते हैं यार, हाय हेलो, बाकी का बाद में देख लेंगे। तो गया, उसने कुछ बात किया, कॉन्वर्सेशन 5 मिनट में खत्म, वो फास्ट वॉक करके चले गई उधर से। मैं वो आया, मैंने बोला तेरे बस का कुछ भी नहीं है, रहने दे। तो वो टाइम पे बीबीएम बहुत चलता था, तो मैंने बोला यार पिन ही दिलवा दे फिर बीबीएम का, कहीं तो बातें बढ़े आगे। तो बोलता है कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। अगले दिन फिर बीबीएम में रिक्वेस्ट भेजे जा रहा हूँ, उधर से डिक्लाइन होते जा रहा है। मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद ऐसे फेसबुक पे आया, तो फेसबुक पे मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया, वहाँ पे फिर एक्सेप्ट हुआ उधर। मैं बोला बॉस स्कोप है, चांस तो है। तो Tell me there's a chance. What do you do ऐसे सब करके, तो अपना छाती चौड़ा करके पता नहीं लगा आई प्ले फॉर मुंबई इंडियंस, ये वो। मेरे को लगा कि ये थोड़ा एंगल अच्छा रहेगा, इम्प्रेस नहीं। उधर से रिप्लाई नॉर्मल, ओके क्या कोल्ड रिप्लाई आ रहा है यार, कुछ भी नहीं आ रहा है, मिलना ही सही है। तो फिर नॉर्मल मिलके बातें करने लगे। वी यूज्ड टू फाइट अ लॉट, झगड़ा बहुत ही करते थे, बहुत ही ज्यादा। कुछ बातें मतलब स्टार्ट होके 15-20 दिन हुआ था, बट somehow हम लोग ढूंढी लेते थे Bollywood movie. Jeez Louise. कि चलो ठीक है हो गया, तो लेट्स टेक इट अहेड slowly, और फिर देन रेस्ट इज हिस्ट्री। We began fight a lot. That's not usually a good sign. बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया। How many tattoos do you have? ऐसे तो अगर गिनने जाएंगे, इसको अगर पूरा एक ही पकड़ा तो इसको और चेस्ट को और बैक को, तो 1 2 3। कभी किसी ने मना नहीं किया, मम्मी पापा ने मना नहीं किया? पहले मम्मी डैडी का ही नाम लिखा था ना, ये यार स्टार्ट उससे किया, फिर मम्मी डैडी का पोर्ट्रेट बनाया, फिर उसके बाद ये सब हुआ। तो ये परमिशन आ गई, फिर उसके बाद तो उन्होंने तो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया ना? किसी भी चीज के लिए उनको जब पता चल गया एक टाइम पे आने के बाद कि पढ़ाई वढ़ाई में इसका कुछ नहीं हो सकता है, फिर उनको लगा कि बस। पर ये है ना इंडियन फैमिलीज में इंजीनियरिंग वगैरह, योर पेरेंट्स नेवर, एंड स्पेशली योर फादर इज एन इंजीनियर, करेक्ट राइट? वो तो कब प्रेशर नहीं किया, पर उनको तो प्रेशर आया होगा लोगों से। हाँ, उनको आता था, उनके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, फिर उनके मतलब मेरे दादाजी से वगैरह आता था कि अरे आप इतना पढ़ लिए हो, उसका भी देखो कुछ स्पोर्ट्स में क्या फ्यूचर है। ऐसे ही बोलते हैं ना, डायरेक्ट बात नहीं करते, सीधा डरा देते लोग। तो वो टाइम में भी बहुत थे, मम्मी के फ्रेंड्स भी थे,
पापा के भी ऑफिस के फ्रेंड्स थे, तो वो लोग पूछते रहते ना कि क्या है, कितना आया परसेंट, आगे का क्या प्लान है, क्या करने वाला है। नहीं अभी तो क्रिकेट खेल रहे, अच्छा बस इतना ही खत्म। तो बट उनको ऐसा था कि नहीं ठीक है खेलने दो, जितना मन कर रहा है खेलने दो, खुद थक गया तो फिर संभाल लेंगे बाद में। उन लोग पीछे नहीं थे कभी, उन लोग आगे थे कि है हम लोग। बिफोर यू डिड मेहुना, they did मेहुना to you. करेक्ट, हम है ना, हम है, वाह। Your dad also said something about वो मिस्टर क्रिकेट इंडियन माइकल हसी वाला। हाँ वो मेरे को हमेशा उनका ही एग्जांपल देते रहते। वो कभी डेब्यू किए ऑस्ट्रेलिया के लिए, एंड व्हेन ही रिटायर्ड ही वाज कॉल्ड मिस्टर क्रिकेट। तो ऐसा जरूरी नहीं है, यू हैव टू प्ले फ्रॉम 25, 22 और 10-15 साल खेलने के बाद ही यू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ। जितना भी खेलो ऐसा खेलो कि लोग याद रखें। I am before going I want to tell you कि I have been rooting for you so much to play for India and I am so happy when you play and लोग ऐसे ना अपने डायरेक्टर वगैरह कान में बोलते रहते हैं उसका रिकॉर्ड हो गया अभी 8 इनिंग्स अब वो आजकल हर रिकॉर्ड सबको पता है ना। मैंने कहा रुको गोल बड़ा है अभी, लड़के ने बहुत लंबा चलना है, नाम स्काई है, अभी उड़ान देखते जाओ। All right, so Gabriel, is he any different than you've expected him to be? So much different than I expected him to be, bro. Really? He just seems like the way he is when he's out there on the field. He's so calm. He's so composed. He's like in the moment. He's not like I mean, that's what I meant. Like his demeanor is just so sky, man. Dude, like, think about how little cricket we actually spoke about and listened to. Like, bro, like he was talking about his wife and how she was a big part of that change around. And of course, I love how Gaurav finally, asked a question. We were talking about it. Everyone knows. I mean, it was like one of those things that everyone who watches cricket and knows anything about Indian cricket, everybody's saying, why is Sky not playing? You know what I mean? And why doesn't he make the team? And of course, Gaurav had to ask the question. But, the majority of the conversation just revolved around, his personal interactions with other players who motivated him, just little things like the story about meeting his wife while he was in college. I didn't realize he was still in college while he was playing for the Mumbai Indians. You know what I mean? And I was like, isn't that crazy? Yeah, that's crazy. You know what I'm saying? And he's like, I thought that impressed her. Yeah, I was laughing when he was talking about BlackBerry messages and she was denied. Okay, I finally Facebooked her and she did my Facebook request. That was so funny. But like, I expect this guy to just be more, I don't know, like not arrogant, but just more, you know what I mean? Oh, not at all. Sky? You know what I mean? But no, he's just so humble and so, because on the field, yeah, you're right. He's Mr. Calm, Cool, Collected because he's like, acts like he's in control. And like the whole Virat Kohli staring thing, I had heard about that. Like, yo, that's what I'm saying. Like not even Virat Kohli shakes him. I'm Sky. And no, he was like, you know what I mean? Like, no, I was actually panicking inside. Oh, he's freaking out inside. So, dude, like, I love this kid. And I think just the fact that there's no success without struggle. And he talks about the struggle. I think one of the things that really stood out to me was how other people helped him through this journey. And I talk about with my own kids playing in collegiate sports and high school sports, how it's tough. It takes a collective effort, really. But it was the way he looked at it, half glass empty, half glass full. Like, I probably honestly would have been bitter, Nick. You know what I mean? If I'm better than guys and guys are get called up and the whole world knows I should be playing, everybody knows I should be on this team and I'm not making the team. And then his way of thinking it was like, if I had made it at 21, 22, then I'm feeling pressure to perform. But by the time you get in there and you make it at 30, everybody knows who I am. You know what I mean? I'm Sky. Like, you know what I mean? Like, I don't got to prove nothing to nobody. See, like, that way I was thinking about that same thing. I'm not convinced that it didn't bother him. I'm convinced that he has a good outlook on it now. It's got to be so much pressure because, like he said, like his family and everything else, like, is he going to get a real job? Is he going to become an engineer? Like, get your son straight. And it's a sacrifice when you say, I'm going down this road, I'm betting on myself, and I'm going to keep – and you make it to the IPL. That's nothing to sneeze at, right? At a young age, you get it there.
you see all these, that would be the toughest thing. These guys you played with were probably in your mind like a, K.R. or something like that, where you're like, I'm better than that guy, or I'm just as good, right? Why does he get a call up so many years before I do? That would be really, really tough. But I love that it was his wife that supported him. This is what's so important in any kind of marriage. And it doesn't have to be the wife always supporting the husband. It could be the other way around or whatever it is. But a spouse should be there to support, to give advice, but give that tough love too. Like, okay, if you want to do it, stop going out late at night. Let's get a proper batting coach. Let's look at our diet. Let's look at all these things, your training regimens. Let's lock it down and let's figure out what needs to happen, because it's so easy for us as people just to make excuses. Oh, it's like the Rocky speech we always talk about. Not him or her or anyone else. That's how winning is done. You've got to do it yourself, and you've got to make it happen. And that would be such a trial, especially when wherever everyone else is playing, he's performing. Like it's not like he's like garbage and he's not contributing. He's performing. And to the point that you love to make, Venkatesh Iyer spent like 5 minutes in the IPL and he already got his Indian cap, right? So, I mean, the important thing is that as much as you can self-pity, which I don't think he did, but as much as you could self-pity the average person, no one else cares about that. The Fletchers don't care that you're crying in the corner because you didn't make it. They want someone that they feel is confident and ready to play. And so he trained every single day for years for that opportunity. And I love his wife's message. Now your journey starts. Okay, this is like the end credits for the movie. You made it to one. No. Now make a career out of it. I'm really impressed with their relationship, with how she supports him and how he's so humble. And he's like, yeah, my wife, she's like so big in my, even Rohit noticed it, right? Like, your wife's awesome. She's been there helping you out. I love that whole thing. But you're right. It would be tough to see everyone else get up and be like, what's wrong with me? It'd be so easy to quit. But he just kept moving forward. And I love this guy even more now. He's so calm. I love the fact that after he had his debut and he did well and they won, that he's watching YouTube videos, hearing people talk about it. He's watching the replay. That's what I would do, man. I mean, come on. I love how honest this guy is. Like, I want to hear what other people are saying. I don't think he watched Cricket for Americans, and that's okay. But I love that he did that. Dude, it's like I said, I was just so shocked that, he could have talked about his accolades and his records, and everybody knows the records. Everybody knows, what I think Gaurav said. Everybody knows what you've done. Everybody, to be like, there's no secret you should have been there. But like the interview just surrounded around his journey and the struggle, and to let other people know that sometimes, you might get there in 5 minutes, like a Venkatesh Iyer. But sometimes it could take you 5 years. It could take you a decade, which it took Sky, because he debuted in 2021 and he made his debut in Ranji. His Ranji debut in 2010. That's 11 years, man. That's a long time. And that's why people are saying, Gabe, this kid's been around for a long time. He's not a young cat. And I mean, I was just shocked. You're like, really? Like, why isn't he's not up? You know what I mean? And he's got those good genes, so he could easily pass for somebody in his 20s. But he's 31, Nick, and he made his debut in 2021. We actually got to see his debut. And he's averaging 54 in ODIs, 40 basically in T20 International, and 30 actually in the IPL. He had a rough year in the IPL last year. This year he came back, had a better season before his injury. But yeah, I've been such a Sky fan. I'm a bigger Sky fan now. I'd love to say I'd be as humble as he is. I wouldn't be. And just some of the stuff he talked about was hilarious. Talking about how Pant and Ishan Kishan will just eat anything on anything, and they take donut holes and bread and dip it in chocolate. He was like, "What do you put some chicken and butter on it?" He's like, "Are you it's their hamburger." I love it. All they do, like, they don't care. They don't like those two guys. It's funny. I was watching a video the other day about Pant, and they're talking about should Pant change his approach because he's a talented player. But he's too aggressive. I forgot who we were talking about it. On that, yeah. And he was too free. But the thing about Pant is that's what makes Pant. You know what I mean? The fact that he is aggressive. He's a young boy. Like, maybe that's what makes him not ready to lead. And we saw that this year with the
the DC Capitals, right? When you're at the captaincy, where you were in that cap and you got that C on your jersey, where you run this team, it's a little bit different. You're expected to command or carry yourself a little bit differently. But when you're just worried about you and your play, you can go out there and be a pant and be a fool on the mics, and you know what I mean. Come on, let's go. Come on. What are you? And like getting people's heads and do the crazy stuff. Even his own players, he's like, "What are you talking? Don't worry about it. What's wrong with you? I'm just bored. Like, go away, come back in. Go away, come back in. He's like, what does that mean? Dude, it was a great interview. Gaurav, once again, it was just amazing. He just lets it happen. He asked the right question. Obviously, he's prepared. I don't know what that dish was. He's like, get that out of here. We're not going to touch that. I have no idea what that was. That was pretty funny, though. But the question is, what do you guys think about this? Did you learn anything more about Sky? This is a fairly recent video for Breakfast with Champions that we've done. Let us know what else you want us to react to. Thank you so much for checking this out. And until next time. We know all things.